So our focus in this particular course will be on Excel and on R. And if time permits, I will introduce you to, depending on how our course goes, I will introduce you to Python, because एक लैंग्वेज आपको आ गई तो वो सिमिलर कमांड आप Python में भी यूज़ कर सकते हो. इनफैक्ट आई फाइंड Python to be a much more convenient and a much more easier language and much more friendlier language than possibly R. R is probably a statistician's language, and Python is more of a data scientist language. ठीक है. So we will see R in our analysis in these classes first of all. So जो next हमारा जो plan, जो orientation है वो क्या है, that so the way that we will proceed is that we have to do two things. We have to see introduction to R programming. ठीक है. And उसके अंदर there are three major issues that we have to cover. One is data analysis, जिसके अंदर डेटा स्टोरेज, डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा क्लीनिंग के बारे में बात करेंगे. दी अदर इज डेटा विजुअलाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, एंड दी थर्ड इज स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस. ये तीन चीज़ों के बारे में हमारा ओवरऑल एनालिसिस रहेगा इस पूरे कोर्स में, एंड बोथ थ्रू एक्सेल एंड आर. बट my focus initially for the next 3 odd weeks will be on R, so that Excel फिर भी लोगों ने यूज़ किया होता है. Excel I mean it's not a command based language, it's kind of a user interface जो है उसका easier है, click and go वाली language है, एक तरीके click and go वाला software है, rather R is a proper programming language when you need to have syntax that you need to give. तो इसीलिए थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, इसलिए कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है. लोगों ने यूजुअली नहीं किया होता है, स्कूल्स में भी नहीं किया होता, एंड कॉलेज में दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट इट इज़ बीइंग टॉट. ऑल्दो लास्ट ईयर भी था, बट दिस ईयर इट्स बिकम मैंडेटरी टू टीच आर. लास्ट ईयर व्हाट यूज्ड टू हैपन इज it was optional to teachers whether they want to teach a concept through Excel or they want to teach it through R. This year it's compulsory to take both Excel and R, and questions that will be asked in your examination will be based out of both Excel and R. तो वहाँ पर mention होगा कि आपको कौन सा language use करना, and you would have to write those commands. Now our focus in today's class will be on just the introduction part, downloading and running certain basic syntaxes. ठीक है. Let's talk about technical requirements. In terms of technical requirements, we have two major technical requirements. या तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, या आपके पास वेब बेस्ड ब्राउज़र होना चाहिए. ठीक है. वेब बेस्ड इन दी सेंस कि आप अपने मोबाइल में आर क्लाउड पे आप अकाउंट बना लो, और वहाँ से आप यू कैन ऑपरेट योर दिस थिंग. आई होप ऑल ऑफ यू हैव दैट फाइल गाइज, जो मैंने आज इंट्रो टू आर भेजा था. Simultaneously I'll be showing you my screen, so you can at least see through the screen that how the codes are being run. ठीक है. जस्ट इन केस अगर कहीं पर भी ग्लिच आता है तो यू कैन एटलीस्ट फॉलो इट थ्रू माई स्क्रीन, एंड इन एनी केस यू हैव द आर फाइल नाउ. आई विल बी शेयरिंग द कोड्स नाउ. लेट्स फर्स्ट क्विकली गो थ्रू द ओवरव्यू ऑफ द कोर्स. ठीक है. एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कोर्स का क्या है. एंड when we talk about the overview, this course is divided into 4 units. So if you see, these are the 4 units that you have. Unit 1, ये जो unit है ये theoretical unit है. So when you talk about Unit 1 will be taken up by Karma, which basically talks about the theoretical aspects. हमारा जो मेन काम है वो हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, वेयर बाय वी विल सी दिस यूनिट, जो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर में बेसिक एस्पेक्ट्स कैसे करते हैं. ठीक है. डेटा स्टोरेज, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा क्लीनिंग क्या है. मेजरली ये जो आपकी रीडिंग्स हैं, लेवाइन जो है ये बेसिकली टॉक्स अबाउट एक्सेल, एंड बाकी दोनों इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट आर. ठीक है. सो वील गो थ्रू दीज रीडिंग्स, वील इंश्योर दैट वी डोंट स्किप एनीथिंग आउट ऑफ दीज रीडिंग्स. एंड सो ये याद रखना कि लेवाइन इज बेसिकली गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सेल, तो उसके अंदर हम एक्सेल वाली बात करेंगे. सेम चीज़ हम वी विल सी इट थ्रू आर एज वेल. ठीक है. बट my focus will more be on R rather than on Excel. And then you have visualization, जहाँ पर हम bar plots and graphs देखेंगे. There's a library in R called ggplot. There's a library called ggplot. हम इस ggplot को देखेंगे कि इसके अंदर plotting कैसे करते हैं, bar graphs की, line graphs की. ठीक है. So this is what we need to do. And then there are certain statistical tests that we need to see. Normal distributions basically देखने हैं. Normal distribution, chi-square distribution, F distribution. So ये distributions हम देखेंगे, statistical distributions. So a lot of this will be overlapping with statistics as well. So you can think of this course as practical statistics as well.
सो ऑल्दो स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस अभी तो शुरू नहीं हो रही होंगी, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स इज टू बी टेकन अप बाय दैट न्यू टीचर विल बी अपॉइंटेड. सो बट यू विल इवेंचुअली फाइंड दैट बहुत ज़्यादा ओवरलैप है, स्पेशली इस यूनिट के अंदर तो बहुत ज़्यादा ओवरलैप है ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा एनालिसिस. एंड देन इस यूनिट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप आ जाता है स्टैटिस्टिक्स एंड इसके अंदर योर डेटा एनालिसिस के अंदर, वेयर बाय वी विल सी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग को इंट्रोड्यूस दैट. एंड बोथ दीज कोर्सेज will then lead to a course which I teach in the 4th semester, which is econometrics. Okay, from now on, from 3rd semester onwards, you will be there with me till your 6th semester. So I'll be taking data analysis in this semester, I'll be taking econometrics and contemporary economic issues in 4th semester. I'll be taking Indian economy 1 in 5th semester and Indian economy 2 in 6th semester. So your journey with me is now going to be there till the end of your term in college. So ये हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं फिलहाल के लिए. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आर. ठीक है, पहले हम आर का विंडो देख लेते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. सो व्हेन वी आर गोइंग टू गेट स्टार्टेड, आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है, जो अगर आपने किसी ने किया नहीं है तो वी विल सी दैट हाउ डू यू डाउनलोड आर एंड फ्रॉम वेयर डू यू नीड टू डू दैट. सो इफ यू सी गाइस, डाउनलोडिंग आर इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इज़ वेरी सिंपल. हाउ डू यू डू इट? यू गो टू, दो चीज़ें आपको करनी है. एक तो आपको आर चाहिए. ठीक है, आर इज़ दी बेसिक इज़ दी सॉफ्टवेयर. ठीक है, जो मेजर यूज़ होगा ये. आप क्रैन की वेबसाइट पे जाओगे एंड क्रैन से जस्ट गूगल इट अप, डाउनलोड आर. तो जब यू डाउनलोड आर करोगे तो आपके पास ये विंडोज़ का वर्जन यू हैव टू बाय, यू हैव टू डाउनलोड. इफ़ यू गो फॉर दिस थिंग, इसके अंदर यहाँ पर आपके पास मैक का भी वर्जन आ जाएगा. सो यू कैन डाउनलोड दैट. एंड देन इफ यू सी आर, तो आर के अंदर कोई ग्राफिकल इंटरफेस नहीं होता. ठीक है, ब्लैक कलर का बेसिकली कंसोल होता है जिसके अंदर आप कमांड टाइप करते हो टू सी योर ग्राफ्स, टू सी योर कोड मोर एफिशिएंटली. what has been developed is आर स्टूडियो. ठीक है, सो इट्स समथिंग लाइक इन पाइथन. अगर हमने पाइथन देखी हो तो पाइथन में हम जुपिटर नोटबुक यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपकी विजुअलाइजेशन बेटर हो जाती है उस नोटबुक के अंदर, उस एनवायरनमेंट के अंदर. सो ये एक तरीके का IDE है, एक तरीके का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जहाँ पर आपकी सारी चीज़ें एक साथ आ जाएंगी. वी विल सी दैट एनवायरनमेंट ऑल्सो. ठीक है, नाउ सो द सेकेंड थिंग आफ्टर यू हैव डाउनलोडेड आर इज दैट यू नीड टू डाउनलोड आर स्टूडियो. ठीक है, आर स्टूडियो, जस्ट गूगल इट अप, डाउनलोडिंग आर स्टूडियो. एंड व्हेन यू डाउनलोड आर स्टूडियो, आपके पास ये वाला फ्री ऑप्शन आएगा, फ्री डाउनलोड आर स्टूडियो डेस्कटॉप. तो ये आपको डाउनलोड करना है. देन if you have a MacBook, then you also have to, apart from R Studio and R, you also need to this thing download Xcode. ठीक है, this is how it's run on your MacBook. ठीक है, कमांड तो सेम रहेगा, बट आई थिंक जैसे हमारा कंट्रोल प्लस एंटर होता है, तो आई थिंक उसमें कमांड प्लस एंटर होता है. ठीक है, सो आई यूज टू यूज़ मैकबुक, बट उसमें अपने आप में इतने थोड़े चैलेंजेस लगते हैं इन टर्म्स ऑफ यूजिंग सॉफ्टवेयर्स, तो आई स्विच टू अ विंडोज बेस्ड सिस्टम. देन द लास्ट थिंग दैट वी नीड टू सी बिफोर वी स्टार्ट आवर कोडिंग पार्ट इज दैट इस तरीके का आपका कंसोल होगा. देखा गाइस, आप सबने इस तरीके का कंसोल होगा. एंड सबने ये देखा गाइस, एक आपका स्क्रिप्ट का पेज खुल जाता है. ठीक है, यहाँ पर आप फाइल पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर स्क्रिप्ट का ऑप्शन आएगा. वैसे तो यूजुअली आपके पास कंसोल आ रहा होगा, एनवायरनमेंट आ रहा होगा, एंड ये फाइल्स, प्लॉट्स, पैकेजेस एंड हेल्प आ रहा होगा. ठीक है, एंड मेरा आपका वाइट में आ रहा होगा, मैंने ब्लैक करा हुआ है इसको. ठीक है, तो इफ़ यू वांट डार्क मोड, तो you can switch to dark mode as well in this. ठीक है, and you can increase the font and all of that can be done. ठीक है, I'll just show it to you how to do it. यहाँ तक पहुँच गए सारे गाइज. यहाँ ये पेज सबका खुला हुआ है. सो हेयर वी आर गाइज, ये हमारा आर खुल गया. ठीक है, जस्ट इन केस यू वांट टू चेंज द कलर्स, मैं एक काम करता हूँ, इसका फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूँ. सो ऑल यू नीड टू गो इज गो टू टूल्स, गो टू ग्लोबल. यहाँ पर आपको अपीयरेंस मिल जाएगा. अपीयरेंस में यू कैन थीम चेंज कर सकते हो. ठीक है, ये आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो. ये एडिटर थीम जो है ये आप अलग अलग यूज़ कर सकते हो. ठीक है, इसको तो सेम ही रहने देना, बट एडिटर थीम चेंज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर आपको एम्बियंस वाला चाहिए तो ऐसा रहेगा, हो जाएगा. ठीक है, तो आप इसको अपने हिसाब से यू कैन चेंज इट. दिस इज़ व्हाट आई यूज़. ठीक है, वाइब्रेंट इंक. एंड लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट फॉर द क्लास.
ठीक है, सो दैट इट्स ईजियर. ऑल ऑफ यू कैन रीड द स्क्रीन गाइस. ठीक है, चलो. सो लेट्स रन थ्रू आवर गाइस बेसिक कमांड्स देखते हैं सारे के सारे. ठीक है, एंड देन वी विल सी अदर थिंग्स. इफ यू हैव क्वेश्चन गाइस यू कैन put it on the chat box as well. Simultaneously I've opened the chat box just in case if you don't want to unmute yourself. Now guys, so the first thing that we will see in this thing, we type all our commands in this window. ठीक है, और अगर आपको कोई भी चीज़ को कमेंट आउट करना है, किसी भी चीज़ को कमेंट आउट करना है तो आप यहाँ करोगे. ठीक है, एंड ये यहाँ पर आप स्क्रिप्ट लिखोगे अपनी. ठीक है, और ये जो आपका कंसोल है, ठीक है, जो नीचे वाला बॉक्स है, इस कंसोल में आपका आउटपुट रिजल्ट्स आएंगे. ठीक है, सो दिस इज वेयर एक्चुअली दी ऑल द कमांड्स आर रन एंड ऑल द आउटपुट विल कम, एंड कोई एरर आएगा तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा. बट वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू सेव योर स्क्रिप्ट्स. तो बेसिकली दिस इज वेयर यू टाइप इन ऑल योर स्टफ. तो यहाँ पर आप टाइप करके जो भी आपने फाइल रन करी, कमांड रन किया, वो सारा आप यहाँ पर टाइप करके उसको आप सेव कर लो. सो दैट वेन एवर यू नीड इट नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको फाइल भेजी आर की, तो वेन एवर यू ओपन दिस अप, आपके पास ये सारे के सारे ऑलरेडी स्टोर्ड आपके पास सारे के सारे कमांड्स आ गए हैं, एंड नाउ यू नीड टू रन देम वन बाय वन. सो इस तरीके से यू कैन स्टोर ऑल योर वर्क. वेयर एज इफ यू ओनली वर्क इन द कंसोल, तो जैसे ही आपका सिस्टम बंद होगा तो यू विल लूज ऑल योर आउटपुट. and this is until unless you save it as a file, but this is a much more efficient and a good practice to do कि आप इसमें स्क्रिप्ट में लिखोगे and console में you will get the output. whatever variables that you are going to create वो आपके environment इस बॉक्स में आ जाएगा, environment वाले बॉक्स के अंदर. and whatever plots that you are going to make, जैसे कोई भी हम हिस्टोग्राम बनाएंगे या बार प्लॉट बनाएंगे, तो वो सारे के सारे प्लॉट्स यहाँ पर आ जाएंगे. एंड वी कैन ऑल्सो सी दी पैकेजेस. ये हम पैकेजेस के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, अभी तो इस क्लास में हम बेसिक्स के बारे में बात करेंगे. सो ऑल योर पैकेजेस विल कम हेयर. यहाँ पर आप पैकेजेस देख सकते हैं कौन कौन से इंस्टॉल्ड है. The first package that I will ask you to download from its library, कुछ pre packages आते हैं. Something like imagine this to be something like your mobile. Your mobile has inbuilt certain apps जो आपके साथ में आती हैं, and then you download WhatsApp, you download Facebook, you download all those applications. Similarly, there is this basic version of R that comes, and then you have to download all these applications. So these applications here are instead called as packages. तो we will see that what are the major packages, and हम एक major package download करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसको बोलते हैं tidyverse. ठीक है, if you see मैंने tidyverse ऑलरेडी डाला हुआ. I'll show you how to install it in the next class. But if you see यहाँ पर आपको ये देखो tidyverse, तो tidyverse मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है अपने मेरे सिस्टम के अंदर. तो we will talk about all of those packages that we will need. ठीक है, जैसे लीनियर रिग्रेशन बाद में कभी हम करेंगे तो उसके लिए पैकेज हैं. ठीक है, तो बहुत सारे हमें ये पैकेजेस कॉल करने पड़ेंगे. सो let's talk about it when we come to that. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद बेसिक कैलकुलेशन. तो अगर आपको कोई सी भी चीज़ को कमेंट करना है, ठीक है, तो उसके आगे आप हैशटैग लगा दो. तो हैशटैग लगाने का क्या यूज़ होता है कि सपोज मुझे कोई चीज़ कमेंट है, मैंने कोई कैलकुलेशन करी, या मैंने कोई वेरिएबल बनाया, या मैंने कुछ भी काम किया, कोई भी कोड रन करना चाह रहा हूँ, तो उससे पहले मैं उसको हैशटैग से मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ. ठीक है, लेटर ऑन इफ यू वांट टू यूज इट, आप 1 साल बाद 2 साल बाद भी अगर इस फाइल को खोलोगे तो एटलीस्ट आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने किया क्या हुआ. So that is again a good practice in data science, that you always use hashtags so that not only you but anyone else who's opening your file is able to understand what is going on in the overall code. तो इसीलिए आप शॉर्ट में अपने कमेंट को क्रिस्प रखोगे. इसका ये मतलब नहीं कि आपने 6 पैराग्राफ लिख दिए उस चीज़ के ऊपर. ठीक है, तो आप 1 या 2 लाइन में यू विल समराइज what the code is essentially doing. Let's move on to first basic calculations. All of you ready guys with your systems? What I'll do is next क्लास में आपको मैं R cloud भी दिखा दूंगा. देखो इस तरीके से आपका R cloud होता. ठीक है, एंड मैंने यहाँ लॉगिन किया हुआ है. फाइल resume prepare introduction to R. मैंने एक फाइल बनाई हुई है. कैन यू सी गाइस, बिल्कुल सिमिलर है. बिल्कुल ऐसे ही आपका टर्मिनल आपका ये आ गया. अच्छा, यहाँ पर आपका कंसोल आ रहा है. ठीक है, ये आपकी स्क्रिप्ट आ गई. ठीक है, यहाँ से फाइल पे आप क्लिक करोगे तो स्क्रिप्ट आ जाएगा. तो ये आपका सेम बिल्कुल कंसेप्ट सेम बिल्कुल उस पर है. इफ़ यू वांट टू मिनिमाइज इट, कि आपको ये एनवायरनमेंट ज़्यादा बड़ा चाहिए, तो इसको आप छोटा कर सकते हो. यहाँ से इसको मिनिमाइज़ कर दो, इसको मिनिमाइज़ कर लो. ठीक है, और इसको आपको बड़ा करना है तो इसको आप ऐसे करके. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू कैन रन द सेम थिंग ऑन R cloud.
Harshita, don't worry, the class is getting recorded. Now let's calculate first few things कि simple calculation, addition, subtraction, ये सारी चीज़ें करते हैं. So if you want to run a command in your script, so what you need to do is just press control and enter. अगर if you same चीज़ जो है अगर आप Python में रन करते हो तो Python में shift and enter होता है, ठीक है. So do control and enter 3 + 4. You are getting, ये देखो नीचे आया आपका पास, आया सबका कंसोल में 7. Yes, no, any issues, ठीक है. Similarly you can run the other command 5 + 5. बेसिक कमांड्स रन करोगे आपके पास साइमल्टेनियसली, ये नीचे फिगर्स आती रहेंगी, ठीक है. सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन. देन कम्स योर इशू ऑफ बेसिक अर्थमेटिक. तो अर्थमेटिक में एक मेजर जो हम यूज़ करते हैं वो दैट इज़ योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सो इफ़ आई वांट टू डू 2 raised to the power 5, तो यू यूज़ दिस अगेन जैसे नॉर्मल उसमें करते हैं. सो यू विल गेट 2 raised to the power 5 as 32, ठीक है. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरीके से यूज़ करते हैं. एंड द अदर मेजर थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर वाज द मॉडुलो. तो मॉडुलो क्या करता है, ये बेसिकली डिवाइड करके जो आपका लेट अस सी दिस. ये देखो, सी व्हाट इट हैज़ डन. इट हैज़ गिवन यू 28 डिवाइड बाई 6 एंड गिवन यू द रिमाइंडर. तो इस तरीके से द रिविजन, द रिमाइंडर ऑफ द डिविजन is basically given by this kind of a command where you use 2 times you use basically your percentage sign. Then comes the next issue of, यहाँ तक बेसिकली किसी को कोई इशू गाइस, ये तो बिल्कुल सिंपल कमांड्स हैं. नाउ लेट्स गो टू वेरिएबल असाइनमेंट, ठीक है. अब ये वेरिएबल असाइनमेंट क्या होता है. नाउ हम वेरिएबल्स इसलिए बनाते हैं in all languages, whether you talk about this language or any other language, so that we can recall that particular variable and then utilize it, ठीक है. तो हम वेरिएबल बेसिकली एक असाइनमेंट, एक तरीके का एक स्टोरिंग ऑब्जेक्ट. थिंक ऑफ दिस वेरिएबल एज अ बोल, एज अ स्टोरिंग ऑब्जेक्ट, जहाँ पर आप कुछ भी सामान डाल सकते हो. तो एक बोल के अंदर आप बहुत सारे तरीके की चीज़ें डाल सकते हो. उसके अंदर क्या डाल सकते हो, उसके अंदर आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू डाल सकते हो. यू कैन पुट स्ट्रिंग वैल्यू मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज सिद्धार्थ. सो माई नेम इज सिद्धार्थ इज नॉट अ न्यूमेरिक वैल्यू, इट्स अ नॉन न्यूमेरिक थिंग. सो उसको आप डाल सकते हो, उसको कोलन में डाल के वी विल सी, उसको एज अ स्ट्रिंग करके डाल सकते हो. यू कैन पुट अप बूलियन फैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे समथिंग लाइक ट्रू और फॉल्स, दैट कैन कम. लॉजिकल असाइनमेंट्स जो होते हैं वो आप कर सकते हो. So that are the kind of variables that you can put and then you can recall that particular variable. तो जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया x and we have assigned the number 42 to it. So the moment that you after this, और जब भी आप ये क्या कहते हैं x को assign करोगे 42, what do you think guys, what will happen? Will there be any result guys? Will you get any result? No sir. Yes, exactly. तो आपने यूज ही अपने वेरिएबल को बनाया ही इसीलिए है कि आप बाद में उसको एक्सेस कर पाओ. लेट्स क्रिएट दिस वेरिएबल. सो जस्ट रन एंड कैन यू सी आपके पास यहाँ पर भी यू सी आपके पास एक वेरिएबल x आ गया एंड उसकी आपके पास वैल्यू भी आ गई. तो आपने ये एंड बट यहाँ पर आपने सिर्फ असाइन किया है यहाँ पर और कुछ नहीं किया. बट देन व्हेन यू कॉल दिस you will get 42 as your answer. So variables are nothing but imagine variables as containers. These containers can contain any kind of object and then it can later be recalled for any arithmetic operation. ठीक है, it's a very important concept and again a very good practice. Do remember guys, कई लोग क्या करेंगे, इसको is equal to कर देंगे. ठीक है, that's not a good practice in R. although आप Python में कर सकते हो, ठीक है, Python में आप is equal to लिख सकते हो, but not in R. In R the way to define it is कि you will have that less than वाला साइन होगा and then you have a dash. तो basically ये किस तरीके से होता है, ये basically arrow की तरीके से होता है. Can you see this is a kind of an arrow? Can you imagine this is a kind of an arrow? Yes. तो basically ये क्या कह रहा है कि x जो है उस मैंने 42 को असाइन किया है x को,
ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन थिंक ऑफ दिस कोडिंग पार्ट। ठीक है, सो ऑलवेज वेन एवर यू आर असाइनिंग अ वेरिएबल, मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग दिस टर्मिनोलॉजी। ठीक है, दिस इज अ गुड प्रैक्टिस इन डेटा साइंस व्हेन यू टॉक अबाउट आर एज अ लैंग्वेज। ठीक है, यस, जस्ट पुट इन एक्स, बस नीचे एक्स टाइप कर दो एंड एंटर कर दो उसको। अपना अगर आप विंडोज पे हो तो कंट्रोल प्लस एंटर, नहीं तो कमांड प्लस एंटर होगा शायद से मैकबुक में। एनीवन यूजिंग मैक? इज एनीवन यूजिंग मैक इन द क्लास? मैक में क्या है भूमिका? कमांड एंड एंटर। ठीक है, तो जस्ट डू दिस एंड देन नाउ आई एम असाइनिंग, आई एम क्रिएटिंग अ वेरिएबल विच इज बाय द नेम ऑफ माई एप्पल्स। ठीक है, तो मैंने एक नया वेरिएबल बनाया एंड आई विल देन यूटिलाइज दिस वेरिएबल टू ऐड और सबट्रैक्ट कुछ भी करने के लिए। सो अगेन what do? We just run command and enter. The moment I run command and enter, I have you can see in your global environment I have a new variable apples which is 5 as the value. तो ये basically आपके जितने भी आपके जो bowls या जितने भी आप containers बना रहे हो वो यहाँ पर सारे आ रहे हैं इस global environment में आपके इस पास आते रहेंगे। ठीक है, and then if you want to call this, then you just click on this thing my apples आप करो and just command and enter, you will get that value. यहाँ तक कोई डाउट guys? Very simple, very straightforward, nothing too technical. Now let's see how to add, how to subtract, or how to basically utilize these variables. ठीक है, so suppose I want another variable now. So एक मेरे पास my apples already था। ठीक है, मैंने एक my oranges भी मैंने एक वेरिएबल बना दिया, मैंने एक my oranges भी वेरिएबल बना दिया and I have assigned that value 6 to it। ठीक है, तो अब यू कैन सी मेरे पास एक वेरिएबल आ गया my apples, एक वेरिएबल आ गया my oranges। Now I can add these two variables। ठीक है, Python allows to add। अभी हम वेक्टर्स के में गए नहीं है, बट आई विल इन टुडेज क्लास विल ऑल्सो गो इनटू वेक्टर्स, हाउ टू ऐड वेक्टर्स। बट यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स हैं और इन दो वेरिएबल्स को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। और उसके लिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक नया वेरिएबल बनाया। Now I want to know how many fruits do I have, so I want to add my apples and my oranges। So मैंने जो असाइन किए हुए थे वो वेरिएबल्स लिए एंड उसको एक नए वेरिएबल में डाल दिया विच इज my fruit। एंड द मोमेंट आई डू दैट मेरे पास my fruit करके एक वेरिएबल बन गया एंड उसकी वैल्यू भी आ गई है। ठीक है, एंड आई कैन रन दिस एज वेल। तो मेरे पास यहाँ पर ये आ गई 11। तो ये देखो मैंने जैसे ही यहाँ पर रन किया था, तो मेरा नया एक वेरिएबल यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट हो गया और उसकी वैल्यू भी असाइन हो गई। एंड इफ आई वांट टू कॉल इट, देन मैंने उसको कॉल करने के लिए सिंपल नाम डाला एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस इज रन। नाउ आई टोल्ड यू अबाउट डेटा टाइप्स। ठीक है, लेट्स नाउ गो इनटू डेटा टाइप्स। However guys, एक और चीज you need to see कि if you try to put in string यहाँ पर, suppose let's say I say my grapes। ठीक है, या फिर I say अच्छा this brings me to a very important point। You cannot leave spaces guys when you are creating a variable। Did you see यहाँ पर मैंने जैसे ही ये देखो what I did was मैंने यहाँ पर my grapes कर दिया एंड जैसे मैंने माई ग्रेप्स यहाँ पर करा तो यहाँ पर उसने एरर दिखा दिया कि ये टोकन एक्सपेक्टेड नहीं है। वाई? बिकॉज what this needs is it doesn't need a gap in between, so स्पेस नहीं चलेगा यहाँ पर, you have to use underscore। ठीक है, एंड ये ठीक हो गया। now when I run these commands, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है my grapes 7 आ गए यहाँ पर in string। now let's see what happens here। can you see this error guys? In my apples plus my grapes, non-numeric argument was given to a binary operator। ठीक है, so therefore you cannot add 7 as a string to 5 as a numeric value। So this it cannot do। So unless you convert it into 7, जब तक आप ये नहीं रन करोगे, now it will take it। देखा यहाँ पर आ गया ना my x 12। ठीक है, so another thing that you need to note guys is that you cannot leave spaces, you cannot have spaces in variables। wherever you need a space, create a underscore।
क्लियर हुआ गाइस? यस, नो? ठीक है. नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट डेटा कैरेक्टर्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज कैरेक्टर्स. Basic data types in R. Now basic data types are numerics. For example, अगर मैं बोलूँ 3.2, 4.7, these are decimal basically. Decimals are basically called as numerics in R. Then you have whole numbers, which are basically integers. अगर 4, 5, 6, 7, 8, all of this. For example, ये 42 है, तो 42 is a numeric character. ठीक है, let's create this. तो 42 ये देखो यहाँ पर आपके पास न्यूमरिक एक कैरेक्टर आ गया. देन फॉर स्ट्रिंग्स, एनीथिंग दैट यू नीड टू क्रिएट एज अ कैरेक्टर, एज अ स्ट्रिंग, ठीक है, और एज अ टेक्स्ट, जिसको हम टेक्स्ट बोलते हैं उसको हम कई बार स्ट्रिंग भी बोलते हैं या कैरेक्टर्स भी बोलते हैं. सो यू नीड टू पुट इट इन कोलन्स, ठीक है, एंड रन इट. यू विल गेट, यहाँ पर यूनिवर्स देखो यहाँ आ गया एंड यहाँ पर भी रन हो गया. एंड एनीथिंग विच इज ट्रू फॉल्स को हम लॉजिकल बोलते हैं, या फिर हम इसको बूलियन भी बोलते हैं. ठीक है, बूलियन वैल्यूज होती हैं जो ट्रू और फॉल्स का वो लेती हैं, जीरो और 1 वैल्यूज ऐसे लेती हैं. ठीक है, इसको हम एक्चुअली जब हम मशीन लर्निंग करते हैं, जब हम यूज़ करेंगे तो या तो हम बूलियन वैल्यूज लेंगे और हर चीज़ को नंबर्स में कन्वर्ट करना है. ठीक है, so everything in Python needs, or everything in R needs to be converted into numbers. So we will see that how we convert everything into numbers. For example, we will take certain examples जहाँ पर we have कार होगी एक, ठीक है, कार का इंजन साइज होगा, कार का वेट होगा, कार की माइलेज होगी, कार का मेक होगा. फॉर एग्जाम्पल, ये मैं एग्जाम्पल क्या दे रहा हूँ कि वी नीड टू प्रिडिक्ट, सपोज कि एक कार की एवरेज कितनी है. सपोज मेरे पास टाटा की गाड़ी है, मेरे पास Hyundai की गाड़ी हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं और बहुत सारी कार्स हैं, एंड मेरे पास फिएट की गाड़ियां हैं. तो मेरे पास ये बहुत सारी कार्स हैं. इन सारी कार्स के वेट्स हैं, इन सारी कार्स के मेरे पास क्या कहते हैं, इंजन साइज है, हॉर्स पावर है. दीज आर ऑल न्यूमेरिक. बट ये बनी कहाँ पर है? फॉर एग्जाम्पल US में बनी है, इंडिया में बनी है, फ्रांस में बनी है. तो दीज आर ऑल basically string values, text values हैं. But all of these text have to be converted back into numbers. ठीक है, because the machine will only understand numbers, it doesn't understand your text. So we will also see that how do we convert all these years को हो गया, या फिर all of these textual data into numbers. तो हम हो सकता है हम कहते हैं इंडिया को 1 कहेंगे, US को 2 कहेंगे, क्या कहते हैं, फ्रांस को 3 कहेंगे. सो वी नीड टू सी कि कौन सा वो ऑपरेट करेगा वहाँ पर. तब हम बात करेंगे देयर समथिंग कॉल्ड वन हॉट एनकोडिंग, जिसको हम इकोनोमेट्रिक्स में डमी वेरिएबल्स भी बोलेंगे. ठीक है, वो हम हमारी बात बाद में आएगी पूरी की पूरी. सो वी देन डिफाइन लॉजिकल. ठीक है, लॉजिकल क्या है? बाइनरी वैल्यूज लेता है, ट्रू फॉल्स. द प्रॉब्लम इज दैट आई हैव दिस हैबिट ऑफ शिफ्ट एंड एंटर. ठीक है, बिकॉज दैट वर्क्स इन पाइथन. So every time I keep doing shift and enter, and then my variables are not coming. Now if you want to check the class of a particular variable कि ये class क्या है, ये एक number वाली class है, ये एक string वाली class है, ये एक boolean class है, logical वाली class है. So all you need to do is take up class लिखो और class के बाद parenthesis के अंदर उस जो भी आपने variable बनाया वो डाल दो. So I just put class and then I had put my numeric in that. And see as output देखो न्यूमरिक आ गया मेरे पास कि दिस इज अ नंबर काइंड. ठीक है, सिमिलरली यूज इट फॉर कैरेक्टर में क्या आएगा गाइज? व्हाट डू यू थिंक? स्ट्रिंग. गुड. सो कैरेक्टर, उसको कैरेक्टर भी बोलते हैं, कई बार स्ट्रिंग भी बोलते हैं. सो इट्स लोकली कॉल्ड इन आर, इट्स कॉल्ड एज कैरेक्टर. बट इन जनरल पार्लेंस व्हेन वी कॉल स्ट्रिंग, तो आपको ये स्ट्रिंग मिलेगा इन अदर लैंग्वेजेस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन पाइथन इट्स कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग. ठीक है, एंड इन पाइथन वी कॉल दीज न्यूमेरिक फैक्टर्स एज फ्लोट. ठीक है, फ्लोट इज इन सम बिट्स, तो 32-bit फ्लोट, 64-bit फ्लोट, डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग द नंबर इज. ठीक है, सो वी विल सी दैट एज वेल. ठीक है, सो let's come to that when we complete all of this. Then comes my logical का मैं क्लास चेक करना चाहता हूँ. तो मुझे पता चल गया कि इट्स अ लॉजिकल क्लास विच विल टेक द वैल्यू ऑफ ट्रू फॉल्स, इस तरीके से बूलियन वैल्यू लेगा. ठीक है, now suppose now we will start building a story. ठीक है, now what the story is,
which is the Sin City, although यहाँ पर guess है ही already. Have you seen a movie called Hangover, guys? Yes, sir. Yes, sir. सबने देखी है Hangover? No, sir. अरे कैसे नहीं देखी ये मूवी? चलो, in my classes, guys, I will recommend you a lot of movies. ठीक है, अभी टाइम है. Please stop watching DDLJ. Stop watching all your Salman Khan and your Shah Rukh Khan movies and start watching some real movies. ठीक है. So a good start. What would I say? मूवीज़ के बारे में बात करें तो सबसे पहले सर्च करो, क्रिस्टोफर नोलान की मूवीज़ देखना शुरू करो. अब से आज अपना हर हफ्ते का एक वो बना लो कि एवरी वीकेंड आई विल वॉच एटलीस्ट 1 or 2 मूवीज़ ऑफ क्रिस्टोफर नोलान. ठीक है. Which is one of the famous movies क्रिस्टोफर नोलान की? Can anyone tell me? Inception and Interstellar. ठीक है. तो डनकर्क भी इसी की थी. ठीक है. So watch these movies. You will really love. मतलब you will then come to understand कि what is cinema. ठीक है. And I will also recommend a lot of movies which are based out of जहाँ पर economics का use है. So when it comes to Dark Knight, पूरा बैटमैन वाली ट्रिलॉजी जो है, okay, then when it comes to all of this statistics and stuff, so I want you to watch a movie called 21. ठीक है. It's based on a game called Blackjack. ठीक है. ब्लैकजैक पे बेस्ड होती है एंड काउंटिंग कार्ड्स के ऊपर है. सो ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ दैट मूवी. यू विल ईदर गेट इट ऑन Amazon Prime और ऑन Netflix, दोनों में से कहीं ना कहीं मिल जाएगी. ठीक है. सो दैट इज़ योर असाइनमेंट फॉर द वीकेंड. ठीक है. आपको ये मूवी देखनी है. एंड अनदर मूवी, होल्ड ऑन, लेट मी गिव यू अनदर मूवी. एक दिन आप देखोगे द बिग शॉट. द अदर मूवी दैट यू हैव टू सी इज द बिग shot. This is the other movie that you have to see. Again, this is on the economic meltdown of 2007. ठीक है. Next week I'll give you another 2 movies to watch. ठीक है. बीच में आप बाकी सारी वो क्रिस्टोफर नोलन आपको जब देखनी है वो आप देख सकते हो. These are the 2 movies that I am recommending, which is based out of a little bit of finance, a little bit of Vegas and your statistics as well. ठीक है. चलो. So let's talk about when it comes to Sin City, there is none bigger than Vegas. There's an old quote which is called as what happens in Vegas stays in Vegas. ठीक है. So it's also a statistician's paradise. ठीक है. Because again यहाँ पर सारे के सारे क्या होते हैं Vegas में? What is Vegas famous for? Gambling, casinos. ठीक है. So how do you think? अच्छा, आप लोगों ने वो देखी है Ocean's trilogy? Yes, sir. So you can also relate to Ocean's trilogy, especially Ocean's 11 and Ocean's 13. Gambling and all of these, you can watch these 2 movies as well. Now, so Vegas is the original Sin City, जहाँ पर लोग सारे के सारे एक बार ज़रूर ज़िंदगी में जाते हैं कि अपना लक ट्राई करने के लिए. But what always happens is the house always wins. ठीक है. That is how the probabilities are built, and that is why statisticians love to go there. In fact, I will send you an article tomorrow, probably. आज मैं एक बार शाम को सर्च करता हूँ. A particular university, I'm forgetting which university. I think MIT है या शायद है NYU है. I think MIT है, जिसके कुछ प्रोफेसर्स ने have tried to do this, have tried to use deep learning to basically earn money, and they are able to showcase that if you use deep learning, if you use artificial intelligence, then you can defeat the house as well. So that is why it's called as statistician's paradise. And we'll talk about most of our now examples will be coming out of this particular area. So let's define a variable which is Vegas as go. ऐसे हमने Vegas जाना है. Then हमने जैसे हमने न्यूमेरिक कैरेक्टर बनाया था वैसे हमने एक कैरेक्टर का बनाया था. तो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज इफ यू वांट टू क्रिएट अ वेक्टर. नाउ व्हाट इज अ वेक्टर? वेक्टर अगेन स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज. अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम एक के अंदर एक ही वैल्यू, कंटेनर के अंदर एक ही वैल्यू डाल रहे थे ना. देखो
इस कंटेनर के अंदर सिर्फ 42 वैल्यू थी, इस कंटेनर के अंदर सिर्फ 7 वैल्यू थी. What if I want to create a vector? Now what is this vector? This vector is basically going to it's a one dimensional array. ठीक है, वन डायमेंशनल अरे क्या है कि 1D एक तरीके से, जैसे मैट्रिक्स इज 2D. ठीक है, उसका एक रोज होंगे, उसके एक कॉलम्स होंगे. ठीक है, अ वेक्टर इज अ 1D फैक्टर. ठीक है, तो 1D है, उसके अंदर मल्टीपल आपके पास वैल्यूज आ सकती हैं. एंड इट कैन अगेन इट्स अ कंटेनर, बट इट्स अ मच लार्जर कंटेनर. It can store numeric data, it can store characters, it can store logical. So basically again, imagine vector to be as a data storage tool where you can store multiple things. And how do you create a vector? You use a combine function. What is this combine function? Ye C. Can you see this C? ये आप C यूज करोगे एंड देन यू विल देन पुट पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर जो भी चीज डालोगे वो उस चीज का वेक्टर बन जाएगा. सो व्हाट वी हैव डन हियर इज वी हैव मेड अ न्यूमेरिक वेक्टर जिसके अंदर सारी न्यूमेरिक वैल्यूज और एक कैरेक्टर वेक्टर बनाया. ठीक है, सो ऑल यू नीड टू डू इज कंट्रोल प्लस एंटर एंड कंट्रोल प्लस एंटर. आपके पास ये दो वेरिएबल्स भी आ गए. ठीक है, एंड इफ यू सी गाइस, कैन यू सी हियर, यहाँ पर आपके पास ये जो वेरिएबल्स आए हैं, ये देखो कैरेक्टर वेक्टर आया. कैरेक्टर वेक्टर की ये लेंथ भी बता रहा है. अभी हम इसके बारे में इसके बारे में बात करेंगे, लेंथ के बारे में बात करेंगे कि ये 1 से लेके 3 क्या है. तो ये आपको एलिमेंट्स भी बता रहे हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर. ठीक है, तो जैसे ये न्यूमेरिक वेक्टर है, ये इसकी न्यूमेरिक वेक्टर की क्लास भी बता रहा है कि न्यूमेरिक वेक्टर है, न्यूमेरिक वेक्टर नाम है इसका. इसके अंदर क्या है, इसके अंदर नंबर्स हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स रिटन एज नम. एंड इसके अंदर जो वैल्यूज है 1 से लेके 3 है. 1 से लेके मतलब 3 वैल्यूज हैं इसके अंदर, 1, 2 एंड 3 वैल्यूज. 1, 2 एंड 3 इसके इंडेक्सेस हैं. सिमिलरली कैरेक्टर वेक्टर का जो टाइप है वो कैरेक्टर है एंड उसके अंदर भी 3 वैल्यूज हैं. नाउ अगेन गाइज, पीपल हु हैव डन पाइथन इन देयर स्कूल्स, यहाँ पर अभी हम बात करेंगे. यहाँ पर जो इंडेक्सिंग होती है इन पाइथन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0. ठीक है, ये बहुत बड़ा एक मेजर इशू रहता है पाइथन वर्सेस आर में कि पाइथन के अंदर जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से शुरू होती है, और इनफैक्ट मेजर लैंग्वेजेस में वो 0 से ही शुरू होती है. आर इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1. अभी हम उसकी इंडेक्सिंग के बारे में बाद में आएंगे. बट वी हैव टू क्रिएट दीज 2 वेक्टर्स. एंड सिमिलरली हमने बूलियन वेक्टर बना दिया, और जस्ट टाइप इट, यहाँ पर आपके पास बूलियन वेक्टर आ जाएगा. ट्रू फॉल्स ट्रू, ये आपकी वैल्यूज हैं, और ये लॉजिकल वेक्टर है. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप गए इसके अंदर वेगस में, एंड इन वेगस यू डिसाइडेड टू ट्राई योर हैंड एट 2 थिंग्स. वन इज पोकर. किसी को पोकर खेलनी आती है? टेक्सास पोकर एक टीवी पे भी शो आता है, उस पर भी आता है. इट्स अ वेरी बिग गेम. ठीक है, एंड इट्स नॉट गैम्बलिंग बाय द वे. आई डोंट कंसिडर पोकर एज गैम्बलिंग एट ऑल. ठीक है, and in fact I can boast of this fact that never in my life I've stood up from a table of poker where I've lost. Never in my life ever I've lost money in poker. It has never happened. Let me to touch wood as well. Okay, chalo. So it's a wonderful game. It's a game of probability. ठीक है, इसमें probability भी यूज़ कर सकते हो, and in fact यूज़ करनी भी चाहिए. एंड इट्स ऑल्सो अ गेम ऑफ इंटिमिडेशन. ठीक है, तो अगर आपने किसी को पोकर खेलते हुए देखा होगा, हैव यू सीन गाइस, पोकर खेलते हुए लोग आंखों पे दे वेयर ग्लासेस. हैव यू सीन दिस? यस. ठीक है, बिकॉज दे डोंट वांट टू गिव आईज रीड कर सकते हैं लोग, रिएक्शंस रीड कर सकते हैं. इन सारी चीज़ों से यू कैन टेल कि दूसरे के हाथ में क्या कार्ड्स आए हैं. ठीक है, देयर आर 2 कार्ड्स इन योर हैंड्स एंड देर आर 5 कार्ड्स ऑन द टेबल, जो अल्टीमेटली 5 कार्ड्स होंगे. ठीक है, इसमें आपको बेस्ट ऑफ 5 का हैंड बनाना होता है. That's basically poker. It's world's one of the most popular games. This and blackjack are the most popular games in casinos. And there is something called roulette, which is also called as Russian roulette. किसी ने देखी है roulette क्या होती है? What is roulette? किसी ने खेला है? गोवा में, अंडमान में किसी ने roulette खेला है? roulette क्या होता है? बेसिकली अगर आप देखो तो एक बेसिकली गोल सा एक वो होती है, गेम होती है जिसके अंदर एक बॉल होती है वाइट कलर की, वो एक एक करके नंबर्स में जाती है. 1 से लेके 36 तक के नंबर्स उसके अंदर होते हैं. ठीक है, 0 से लेके 36 तक. ठीक है, एंड देन सपोज मैंने, और साथ में एक बोर्ड होता है.
ठीक है, जिसमें सारे नंबर्स लिखे हुए होते हैं, 0 से लेके 36 तक के सारे नंबर्स लिखे होते हैं. नाउ सपोज आई हैड पुट ऑल माई मनी, मैं चिप्स मेरे हाथ में है, मैंने वो 36 पे रख दिया और बॉल वो घूम रही है और वो 36 पे आ गई, तो आई विल गेट 36 टाइम्स दी मनी. जो मैंने अगर मैंने 100 रुपये लगाए तो मुझे मेरे पास 3600 रुपीज़ मुझे मिलेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से होता है. सबसे सिमिलरली एक वाइट एक रेड होता है और एक ब्लैक होता है. तो अगेन प्रोबेबिलिटी क्या है, 50-50. तो मैंने उसमें ब्लैक में लगा दिया, तो अगर ब्लैक आ गया तो मेरा 2 टाइम्स मनी हो जाएगा, अगर नहीं आया तो मेरा मनी वापस हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क्स. रशियन रूल है. तो सपोज नाउ यू वेंट टू वेगस. ठीक है, आपने कहा कि अब मैं पूरे हफ्ते वेगस में बिताऊंगी, एंड आपने मंडे से लेके फ्राइडे तक यू प्लेड दिस गेम, and you had some winning, some on some days you won and some days you lost. तो आपने मंडे को आपको $140 का गेन हुआ, आप लोगों को लगा बहुत बढ़िया बात है. फिर आपने ट्यूसडे को भी आपने इस पे हाथ लगाया तो आपको $50 का लॉस हो गया. फिर वेडनेसडे को $20 का गेन हुआ, फिर थर्सडे को $120 का लॉस हुआ, एंड फ्राइडे को आपको $240 का गेन हुआ. ठीक है, सो दिस इज एंड आई हैव टू पुट दिस इनटू अ वेक्टर. मुझे बेसिकली इस पूरे को एनालाइज करने के लिए मुझे इन सारी वैल्यूज को एक वेक्टर में डालना है, तभी तो मैं उसके ऊपर न्यूमेरिक एनालिसिस कर सकता हूँ कि मुझे लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, मीन कितना हुआ. तो आई पुट दिस इनटू अ कंटेनर विच इज कॉल्ड एज पोकर वेक्टर. ठीक है, सिमिलरली मैंने रूले का भी सेम चीज़ करी और उसका भी एक वेक्टर बना दिया. ठीक है, यू कैन फाइंड यहाँ पर हमारे वेक्टर्स बन गए हैं. एनी इश्यूज गाइस, यहाँ तक एवरीथिंग क्लियर? ठीक है अनन्या? Sir, another question. Yes. What's the C that you've written before the bracket? C is for combining. So if you want to combine anything, ठीक है, any variables, कोई भी आपको किसी भी चीज़ को आपको अगर वेक्टर बनाना है तो आप कंबाइन करने के लिए C यूज़ करते हो. ठीक है, तो जैसे हमने देखो, जब हमने एक वेरिएबल बनाया था न्यूमरिक, तो हमने कहीं C यूज़ नहीं किया, ठीक है, क्योंकि हम कंबाइन किसी चीज़ को नहीं. C इज बेसिकली शॉर्ट फॉर कंकाटिनेशन. सो द टेक्निकल वर्ड इज कंकाटिनेशन. तो हम कॉन्कैट करने के लिए, ऐड करने के लिए, इन सारी चीज़ों को ऐड नॉट मैथमेटिकली ऐड करने के लिए, इन सब की स्पेसेस बनाने के लिए. सो इट्स अ कंटेनर वेयर यू हैव डिफरेंट स्पेसेस. ठीक है, अलग अलग सीट्स हैं. तो इस तरीके से आपने सीट बना ली, वेयर बाय ऑन सीट नंबर 1 यू हैव 140, ऑन सीट नंबर 2 यू हैव -50, ऑन सीट नंबर 3 यू हैव 20. तो ये भी चीज़ यहीं लिखी हुई है. देखा, देयर आर 5 सीट्स. यू कैन इमेजिन दिस वेक्टर टू बी एज सीट्स. इस वेक्टर में 5 सीट्स हैं, जिसमें फर्स्ट सीट पे 140 बैठा हुआ है, सेकंड सीट पे 50 बैठा हुआ है, एंड सो ऑन. समझ में आया श्रद्धा? Yes, sir. ठीक है, चलो. सो वी हैव क्रिएटेड दीज 2 वेक्टर्स. लेट्स मूव फॉरवर्ड, एंड इफ यू वांट टू कॉल एनी वेक्टर you can easily call that particular vector. So what do we do for calling a vector, guys? What do we do if I want to call a vector या कोई भी वेरिएबल? Put the name of the. जस्ट पुट द नेम. आप ROUE टाइप करोगे तो आपके पास अपने आप आ जाएगा. ठीक है, दैट दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेरिएबल दैट आई हैव क्रिएटेड. प्लस एंटर, ये आपके पास उसकी वैल्यूज आ गई. ठीक है, नाउ एनी इश्यूज? किसी को कोई इशू? आपने पहले असाइन ही नहीं किया. आपने Sir, I have actually assigned it, and after that I had the. पोकर वेक्टर नॉट फाउंड. पोकर वेक्टर की स्पेलिंग और बीच में आपने वो देखा है कि इसमें अंडरस्कोर है. आपने मेरी वाली फाइल यूज कर रहे हो आयुषी? आर यू यूजिंग माई फाइल? हाउ इज दैट पॉसिबल? So maybe one error could be that the vector wasn't run after. हाँ, आई थिंक शायद से तुमने वेक्टर ही रन नहीं किया. एक बार वेक्टर पे जाके, वेक्टर के एंड में जाके एक बार कंट्रोल प्लस एंटर करो. पीछे नहीं जाना, पीछे नहीं छूटना. हो गया? Yes, sir. ठीक है, गुड. नाउ लेट्स नाउ सी. नाउ द प्रॉब्लम गाइज हेयर इज कि अब यहाँ पर हमें तो नेम्स पता ही नहीं है कि अब मुझे क्या पता कि ये 140 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -50 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. ये सारी चीज़ें तो मुझे पता ही नहीं है. सो व्हाट आई डू इज आई नीड टू डिस्प्ले देम एज सर्टन नेम्स. कि ये बॉस, ये कुछ नेम्स हैं, ये सारे के सारे, ये मंडे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ट्यूसडे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेडनेसडे को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो आई कैन नेम माई वेक्टर्स. ठीक है, एंड हाउ डू आई नेम माई वेक्टर्स? जो भी आपने वेक्टर बनाया है, ठीक है,
फॉर एग्जांपल आपने ये पोकर वेक्टर बनाया, इसके आगे हम नेम्स के पैरेंथेसिस के बीच में हम पोकर वेक्टर डालेंगे एंड फिर उसके बाद उसके सारे नेम्स डाल देंगे. तो बेसिकली दिस नाउ मंडे विल बी असाइन फॉर 140. दिस 50 विल बी असाइंड फॉर ट्यूसडे. दिस 120 जो होगा वो थर्सडे है एंड 240 जो है फ्राइडे. सो इट्स बेसिकली असाइनिंग नेम्स टू दीज पर्टिकुलर वैल्यूज. ठीक है, तो so that when you print this particular vector you also get the names of each of these कि अच्छा मंडे 140, ट्यूसडे -50, वेडनेसडे 20, थर्सडे -20 एंड फ्राइडे 240. This is how I want it, because ultimately we need to know what we are doing. What is this vector? What all these figures representing? ठीक है. So what we have done is we have typed in names. So this is how you do it. This is how you name the elements of a vector. नेम्स टाइप करो एंड उसके बाद पैरेंथेसिस में जिस भी वेक्टर के आपको वो देने हैं, नेम्स देने हैं, ठीक है, एलिमेंट्स को, उसको वेक्टर का नाम लिख दो एंड देन यू असाइन दिस टू एंड असाइन कर दो एंड उसमें उसके बाद जो भी सारे डेज हैं जो भी आपको लिखना है वो असाइन कर दो. ठीक है, 1:1 होना चाहिए गाइस, ये 1:1 होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ 5 एलिमेंट्स है तो यहाँ पर भी 5 एलिमेंट्स होंगे, तभी उन 5 को यू कैन असाइन दोज नेम्स. सो यू रन दिस एंड यू गेट अ न्यू वेरिएबल. यहाँ पर आपको देखो नेम्स का एक वेरिएबल मिलेगा. अच्छा, अभी तो सिर्फ नेम्स दिए हैं, वेरिएबल नहीं क्रिएट किया, नेम्स दिए हैं सिर्फ. ठीक है, सो अपने यहाँ पर सारे नेम्स दे दिए. सिमिलरली यू गिव द नेम्स टू योर रूले वेक्टर एज वेल. यू आर नॉट क्रिएटिंग अ वेरिएबल. ठीक है, सो now what has happened is you have given names to this. Now what I want you to do is, once you have done this, I want you to type in any of these. पोकर वेक्टर टाइप कर लो, इसको रन करके देखते हैं, देखो क्या आता है. कैन यू सी गाइस नीचे? नाउ इट हैज असाइंड दैट मंडे इज दिस, ट्यूसडे इज दिस, वेडनेसडे इज दिस, थर्सडे इज दिस एंड फ्राइडे इज दिस. आया सबका ये पक्का ना? द नेक्स्ट थिंग इज what statisticians do is कि statisticians are lazy. So what they want to do is they say that boss I want to save my time. मुझे ये बार बार काम नहीं करना है. ठीक है, मैं पहले मैं ये पूरा टाइप करूँ, फिर मैं फिर से ये पूरा टाइप करूँ इसके लिए. सो एन ईजी वे आउट इज कि आप एक नया वेरिएबल ही बना दो. नया वेरिएबल कैसे बना दो? एक नया वेरिएबल बना दो विच इज अगेन अ वेक्टर जिसका नाम है डेज वेक्टर. एंड देन यू असाइन दिस डेज वेक्टर टू दिस. तो आपने क्या किया, आपने एक नया वेक्टर बनाया डेज वेक्टर. ठीक है, एंड उसको आपने एक वेरिएबल बना दिया. एंड देन वेन एवर यू हैव एनी, जब भी ये 5 दिन आएंगे तो ऑल यू नीड टू डू इज आपने नेम्स पोकर वेक्टर डाला और डेज वेक्टर लिख दिया, तो वो अपने आप ही ये सारी वैल्यूज उठा के पिक कर लेगा. ठीक है, ये सारी वैल्यूज अपने आप. तो आपको यहाँ पर टाइम आपका बच गया, एफर्ट बच गया, आपकी कोडिंग बच गई, बिकॉज ये आपको 2 बार नहीं लिखना पड़ा, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक वेरिएबल बना दिया था एंड उस वेरिएबल को आपने फिर सिर्फ कॉपी पेस्ट मार दिया यहाँ पर एंड आपका काम हो गया. तो व्हाट आई हैव डन इज, बस इसको कंट्रोल+ एंटर करो, आपके पास देखो यहाँ पर एक वेरिएबल बन चुका होगा विच विल बी डेज वेक्टर. ये तो आपके पास आ गया. ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज, जब मैंने ये नेम्स करा था तो वेक्टर क्यों नहीं बना गाइस? मैंने जब ये नेम्स बनाया था तो वेक्टर क्यों नहीं बना? I don't think that was a variable. That was A variable. That wasn't a variable. yes exactly, क्योंकि हम नया वेरिएबल नहीं क्रिएट कर रहे थे. जैसे ही हम यहाँ पर नेम्स टाइप करते हैं तो आर को समझ में आ जाता है कि बॉस आप कोई वेरिएबल नहीं क्रिएट कर रहे हो, आप ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग वेरिएबल के एलिमेंट्स को नाम देने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है, सो सपोज आई हैव स्कोर्स, सपोज दीज आर स्कोर्स ऑफ योर क्लास. ठीक है, तो आई एम जस्ट गिविंग नेम्स इसमें. ठीक है, कि ये अच्छा ये इसका स्कोर है, ये इसका स्कोर है, ये इसका स्कोर है, ये इसका स्कोर है एंड ये इसका स्कोर है. समथिंग लाइक 5 लोगों के CGPA हो एंड फिर 5 लोगों के नाम हो. तो फिर वो समझ में आ गया यहाँ पर आर को कि बॉस अब मैं नया वेरिएबल नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी क्रिएटेड किसी वेरिएबल में, किसी वेक्टर में नाम प्रोवाइड कर रहा हूँ. So this is what it does, and then you can easily save your tasks, save your efforts by assigning names poker vector, names roulette vector, and assign it to days vector. ठीक है, तो बात सेम ही पड़ेगी, चाहे आप यहाँ से करो या फिर आप यहाँ से करो. Any doubts still here guys? Any doubts? यहाँ तक सारे पहुँच गए वेक्टर्स? Yes.
Now let's come to adding, subtracting and basically all your calculations. अब हम calculations पे आ जाते हैं कि बॉस मुझे कैलकुलेट करना है कि कितना कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, क्या मीन है, क्या एवरेज है, ये सारी चीज़ें मुझे देखनी है, ठीक है. न्यूमेरिक कैलकुलेशंस मैं करना चाहता हूँ, ठीक है. यहीं पे हम अभी इंडेक्सिंग भी देखेंगे. नेक्स्ट क्लास में वी विल ऑल्सो सी, एज अनन्या वॉज पॉइंटिंग आउट, वी विल ऑल्सो सी लिस्ट एज वेल, ठीक है. लिस्ट का यूज़ होता है. आज की क्लास में आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल क्रिएशन, ठीक है, बेसिक इंट्रैक्शन एंड वेक्टर्स, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में वी विल अंडरस्टैंड मेट्रिसेस एज वेल, ठीक है. मेट्रिसेस एंड फंक्शंस के बारे में फंक्शंस तक पहुंचेंगे, ठीक है. फिर लिस्ट करेंगे, फिर उसके बाद वी विल डू अदर थिंग्स. नाउ लेट्स मेक अ न्यू वेक्टर, ठीक है. वेक्टर कैसे क्रिएट करते हैं, वेक्टर क्रिएट करते हैं. एंड गाइज वन मोर थिंग, यू विल नॉट बी एबल टू लर्न दिस अंटिल अनलेस यू प्रैक्टिस इट. यहाँ पर तो आपके पास मेरी सारी प्रोवाइडेड कोड्स हैं ऑलरेडी, ठीक है. बट वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू स्टार्ट अफ्रेश, यू नीड टू स्टार्ट अफ्रेश एंड देन टाइप इट आउट, ठीक है. जब तक आप हाथ से नहीं करके, जब तक आप कीबोर्ड पर टाइप नहीं करोगे, आपको नहीं आएगा. ट्रस्ट मी, यू विल नॉट लर्न कोडिंग. कोडिंग विल ओनली कम वंस यू स्टार्ट टाइपिंग आउट द कोड्स, ठीक है. एंड धीरे धीरे वो मेंटल स्कीमा बनना शुरू हो जाएगा. यू विल फाइंड इट ईजी, यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है. सो स्टार्ट दैट हैबिट कि अच्छा मुझे अपने आप से जो भी आज क्लास में हुआ, आई मेक अ सेपरेट फाइल ऑफ माई ओन एंड आई विल रन ऑल माई कोड्स ऑन दैट, ठीक है. आई विल प्रोवाइड माई फाइल, दैट्स नॉट एन इशू, but you should have your own file where you run your codes when you type in your codes. That is how you will learn. If I provide all these files and you are just doing control plus enter, तो उससे काम नहीं चलेगा. In the end you will not be able to, you'll understand but you will not be able to learn it, ठीक है. And coding comes with errors. अगर आपका एरर आ रहा है तो that means कि आप सीख रहे हो. अगर आपको एरर नहीं आ रहा है तो that is a bigger problem. ये याद रखना कोडिंग के अंदर. एरर ना आना इज अ मच बिगर प्रॉब्लम देन एरर आना, क्योंकि एरर आ रहा है दैट मीन्स नाउ यू हैव टू इटरेटिवली लर्न अबाउट इट. एंड द बेस्ट वे इज उसको गूगल करो. देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टैक ओवरफ्लो. आप कुछ भी सर्च करोगे, कोई भी आपका एरर आया उसको उठा के कॉपी करा, गूगल कर दिया, सबसे पहला आंसर ही स्टैक ओवरफ्लो से आएगा, दूसरा आंसर आएगा गीक फॉर गीक्स, ठीक है. सो दिस इज इन लैंग्वेजेस की, आई मीन आर तो थोड़ा डिक्लाइन पे है, बट जैसे पाइथन है आपका कुछ, क्योंकि इतने सारे मिलियंस ऑफ पीपल आर डूइंग द सेम थिंग, सबको सिमिलर प्रॉब्लम आई होगी कभी ना कभी. तो जो भी आपकी प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो कोई ना कोई फेस कर ही रहा होगा, और कहीं ना कहीं आपको कोई हिंदुस्तानी तो मिल ही जाएगा वहाँ पर 100%, जिसने बिल्कुल ठेठ भाषा में पूछ रखा होगा कि भाई ये कैसे करना है, ठीक है. तो वहाँ पर आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे. स्टैक ओवरफ्लो, गीक फॉर गीक्स, देन दिस मशीन लर्निंग मास्टरी. तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ओपन रिसोर्सेज हैं जहाँ से आपको whatever issue that you are facing, you can check that. Then now what we have done is we have created two vectors. One is vector A, one is vector B, and then we are going to add these vectors. So what it does is it does addition element by element. So what it will do is it will add the first element to the first element of the second vector, first element of the second element of the second vector to the second element of the third vector, and the third element of the third vector to the third element of the second vector, ठीक है. So what we do is press enter, हमारे पास एक वेरिएबल बन गया और ये एक और वेरिएबल बन गया, ठीक है. हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स आ गए. नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन क्रिएट अ न्यू वेक्टर विच इज वी कैन क्रिएट अ न्यू वेरिएबल विच इज टोटल वेक्टर, और इनको हम ऐड कर सकते हैं. सो इफ यू डू दैट, आपके पास यहाँ पर टोटल वेक्टर ऑलरेडी बन गया होगा, टोटल वेक्टर, ठीक है. एंड ऑल यू नीड टू, इफ यू वांट टू सी इट्स प्रिंट, just type in total and it will give you a prompt and says कि बॉस मेरा ये वेक्टर है और वेक्टर की ये 3 नंबर्स हैं, ठीक है. now let's similarly now what you need to do is, अब आपके पास आपने 5 दिन ये गेम खेली, और 5 दिन आपने रूले खेला, 5 दिन आपने पोकर खेला. now what you want to do is you want to see how much have you won, how much have you lost, ठीक है. सो व्हाट यू डू इज आपने एक नया वेरिएबल बनाया कि टोटल डेली मुझे पता चले मंडे को कितना हुआ, ट्यूसडे को कितना हुआ, वेडनेसडे को कितना हुआ. सो यू वांट टू ऐड डे वाइज कि मंडे का टोटल कितना है, वेडनेसडे ट्यूसडे का कितना है, हर डे का हिसाब से. सो यू जस्ट ऐड दीज 2 वेक्टर्स
एंड आपके पास नया वेक्टर आ गया। एंड इफ यू वांट टू सी दिस वेक्टर टोटल डेली, ये आपके पास इंडिविजुअल डे का आ गया। नाउ क्वेश्चन गाइस, ये ऊपर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कैसे आ रहा है? ये तो हमने ना अभी तो असाइन किया ही नहीं था। हमने जो है नया वेरिएबल है टोटल पोकर टोटल डेली, इसमें तो हमने असाइन किया ही नहीं था, तो इसमें कैसे आ गया? एग्जैक्टली क्योंकि पोकर और रूले ऑलरेडी असाइंड हैं, जहाँ पर हमने ये इनकी कंटेनर्स के हमने नेम्स लिखे हुए हैं, इसीलिए जो नया वेरिएबल बना है इसमें ऑटोमेटिकली वो कंटेनर नेम्स आ गए। ठीक है, सो देयरफॉर यू गेट इंडिविजुअल। सो यू सॉ कि ट्यूसडे को आपको लॉस हुआ एंड थर्सडे को तो आपको बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू ऐड दीज वेक्टर्स। देन नाउ इफ यू वांट टू सम, अगर आप किसी चीज़ का सम करना है तो ये सेम कमांड उसमें भी होता है, पाइथन में भी उसमें बार बार पाइथन निकल रहा हो, ये सेम कमांड एक्सेल में भी होता है। दैट एक्सेल में भी आपको पूरा सम करना हो किसी पूरे कॉलम का, पूरे रो का, तो क्या करते हो? इज इक्वल टू सम एंड देन यू गिव द रेंज, राइट? तो इसके अंदर भी हम सेम करते हैं कि हमने एक नया वेरिएबल, मैंने सपोज निकाल रहा हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ निकालना है कि टोटल मुझे पोकर से कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ, और टोटल मुझे रूले से कितना फ़ायदा और कितना नुकसान हुआ है। सो आई रन दिस, मेरे पास टोटल इसका आ गया, एंड देन आई रन दिस, मेरे पास टोटल रूले का भी आ गया। ठीक है, एंड इफ आई वांट टू सी कि पूरे वीक में कितना हुआ मेरे पास, तो टोटल पोकर एंड टोटल रूले आएगा। ना क्वेश्चन गाइस, ये डे वाइज आएगा कि ये कुछ नंबर आएगा? ये डे वाइज आएगा कि कुछ नंबर आएगा? रन मत करना, सोचो। नंबर आएगा पक्का? ग्रेट। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये जब आपने सम कर दिया इसका, तो सम ऑलरेडी एक नंबर बन चुका है, इन 5 एलिमेंट्स को आपने ऐड कर दिया। सिमिलरली ये भी एक नंबर बन चुका है, आप सिंपल नंबर्स को ऐड कर रहे हो, तो आपने इसको करा रन एंड यू गॉट दिस। एंड इफ यू वांट टू चेक दिस कितना है, सो यू गेट -84, which basically says that after playing poker for a week and roulette for a week, you realize that you are not good at gambling, or your luck is not great in the city of Vegas. So now you want to see, यहाँ तक clear है guys? Any doubts, any issues? Great. चलो, now what I want to see is that boss, whether I am winning more in poker or more in roulette. ठीक है, तो मैं देखना चाह रहा हूँ मुझे क्या पोकर, क्या am I better at playing poker or am I worse off playing at poker? So I want to check that which particular gamble am I good at. Now what do you think guys? इसका अगर मैं ऐसा कुछ ऑपरेटर डालूंगा ग्रेटर देन, तो इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? इसका रिजल्ट बूलियन होना चाहिए वत्सला सेज, क्योंकि आप क्या कह रहे हो? आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, टोटल पोकर ग्रेटर देन टोटल रूल है, तो या तो ये चीज ट्रू होगी या फॉल्स होगी। दैट मीन्स द आउटपुट ऑफ दिस हैज टू बी ईदर 0 और 1। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरनली अगर वो 1 होगा तो वो कह देगा ट्रू, अगर वो 0 होगा तो वो कह देगा फॉल्स। ठीक है, यू रन दिस, यू से ट्रू, that means your winnings from your overall profit from poker is more than that of your roulette. ठीक है, एंड वो आपको वैसे भी दिख जाएगा, अगर टोटल पोकर का देखोगे, टोटल रूले का देखोगे, तो वैसे ही दिख जाएगा। टोटल पोकर का देखो सम जो आ रहा है $230 आ रहा है, एंड टोटल रूले का -$314 आ रहा है। ठीक है, विच बेसिकली शोज कि लॉस जो हो रहा है वो रूले की वजह से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये प्योर लक की गेम है, इसमें कहीं कुछ नहीं हो सकता। Poker is a game of statistics, and it's both a science and an art. Now comes the portion of vector selection. Now what I want to do is, suppose मुझे देखना है कि मुझे मिड वीक में, ठीक है, मेरा मिड वीक में इन अ सेंस वीकेंड पे क्या होता है, वीकेंड पे यूजुअली व्हेन इट कम्स टू वीकेंड, तो पीपल इन वेगस गो फॉर पार्टीइंग, तो दे माइट बी ड्रिंकिंग अ लॉट एज वेल। इसलिए आप एंड इफ यू सी गाइज, हैव यू हर्ड ऑफ दिस थिंग, जो कसिनोज होते हैं, डू यू नो कि ऊपर से वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो है वो पंप इन करते हैं? हैव यू हर्ड अबाउट दिस?
व्हाट casinos डू? सुना है किसी ने ये चीज़? नहीं सुनी? So what casinos do is कि they artificially pump in a lot more oxygen into there where people are playing. What happens is that you already usually gambling के वक्त people are drinking. Plus what happens is because of more oxygen you get more euphoria. ठीक है, आप ज़्यादा खुश होते हो, और जब आप ज़्यादा खुश होगे तो आप क्या करोगे? ज़्यादा गैम्बल करोगे. So these are the secrets of the gambling industry as well. ठीक है, कि आप ये करोगे तो आप डिसाइड करते हो कि बॉस मैंने ट्यूसडे, आप सपोज आप कहते हो कि बॉस मैं हनुमान जी का भी भक्त हूँ और मैं साईं बाबा जी का भी भक्त हूँ. ना मैं ट्यूसडे को पीऊँगा, ना मैं थर्सडे को पीऊँगा. ठीक है, और वेडनेसडे बीच में पड़ रहा है इसलिए वो दिन में. तो आपने कहा चलो मैं सोबर होके कौन से दिन जाता हूँ कसिनो में. एंड वैष्णवी और माइक इज ऑन. सो मैं सोबर होके कौन से दिन जाता हूँ और फिर देखता हूँ कि उन सोबर वाले दिनों में क्या हुआ. तो यू वांट टू सी योर सोब्राइटी डेज कि अच्छा ठीक है, नॉट सोब्राइटी बट इन जनरल द डेज ऑन विच यू आर सोबर एंड व्हाट वाज द रिजल्ट. तो आप बेसिकली कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज देखना चाह रहे हो. ठीक है, नाउ अब आपको पूरे वेक्टर में से, ठीक है, पूरे वेक्टर में से कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए. तो यू यूज अ स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, व्हेन यू वांट टू टेक आउट अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एलिमेंट आउट ऑफ अ वेक्टर, टू रिमेंबर दिस गाइस, you want to take out a specific element out of a vector, then you use square brackets. ठीक है, तो if you see here, यहाँ पर मैंने square brackets यूज करी हुई है. So square brackets is something like recalling something, कि बॉस मुझे ये चीज़ निकाल के दो. ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैं उसको कह रहा हूँ कि बॉस मुझे पोकर का वेडनेसडे का मुझे एक बार बता दो कि मुझे वेडनेसडे में कितना मिला था. ठीक है, मैंने एक नया वेरिएबल बनाया एंड आई नो कि वेडनेसडे इज थर्ड डे, क्योंकि फर्स्ट इज मंडे, सेकंड इज ट्यूसडे, थर्ड इज वेडनेसडे. सो आई टोल्ड दिस थिंग कि इस वेक्टर के अंदर जाओ, पोकर वेक्टर के अंदर, एंड जो थर्ड नंबर पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, जो थर्ड नंबर पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको निकाल के रिट्रीव करके दो मुझे. ठीक है, सो द मोमेंट दैट आई डू इट, सी कंट्रोल प्लस एंटर, कैन यू सी पोकर, यहाँ पर आपको पोकर वेडनेसडे मिलेगा. कैन यू सी पोकर वेडनेसडे एंड नंबर इज 20. ठीक है, यहाँ पर भी आप टाइप करके देख सकते हो पोकर वेडनेसडे. देखो आपको वेडनेसडे का 20 आपको मिल गया कि $20 का आपको प्रॉफिट हुआ था. ठीक है, सिमिलरली नाउ टेल मी गाइज व्हाट विल हैपन विद दिस. रन मत करना, सोच के देखो. पहले रन करके तो आपको आंसर मिल जाएगा, पहले सोच के देखो क्या कर रहे हैं. ये तो आपको एक वैल्यू मिली ना 20 की, वेडनेसडे की. सपोज मैं आपको कहता हूं कि मुझे चाहिए क्या, ट्यूसडे को भी मैं सोबर गया था, वेडनेसडे को भी सोबर गया था, थर्सडे को भी सोबर गया था. सो ऑल 3 days आई वेंट सोबर टू द कसिनो. आई वॉन्ट अ न्यू वेरिएबल, आई वॉन्ट अ न्यू वेक्टर विच हैज जस्ट these 3 वैल्यूज. समझ में आया गाइस? ये समझ में आया ये क्या करा है कि I am creating a new variable which is called poker midweek and I am asking कि बॉस इसमें वैल्यू पॉपुलेट कैसे करनी है. इस वेक्टर में, पोकर वेक्टर में जाओ एंड रिट्रीव करो सेकेंड नंबर की वैल्यू, सेकेंड नंबर जो प्लेस पे बैठी हुई है, थर्ड नंबर प्लेस एंड फोर्थ नंबर प्लेस, because this is Tuesday, this is Wednesday and this is Thursday, and combine them because I am creating a new vector out of it. ये समझ में आया guys? Then I'll give you a shortcut of this. पक्का सबको? ठीक है, control plus enter and you do control plus enter, you get, can you see, Tuesday, Wednesday and Thursday की values आ गई. ठीक है, now instead of this what I want is, suppose I say boss मुझे ये नहीं चाहिए. ठीक है, मुझे ये इतने बड़े तरीके से नहीं चाहिए. आई एम एंड यूजली स्टैटिस्टिशियंस से दैट मुझे एक शॉर्टकट निकाल के दो इसको. सपोज मेरे पास ऐसे सपोज इस वेक्टर के अंदर let me show you a data set, LSTM 2. चलो अगली बार मैं रन करके दिखाऊंगा, कोई नहीं, I'll show that data set next time. ठीक है, सपोज मेरे पास डेली का, सपोज एक वेरिएबल है, इसमें टेम्परेचर है.
ठीक है, और डेली एक वेदर स्टेशन है जो हर रोज़ हर 5 मिनट के अंदर हर 5 मिनट में वेदर का टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है। तो ये जो वेक्टर है, अगर ये 2 साल जितना डेटा है, तो ये वेक्टर सोचो कितना बड़ा होगा। ये हर रोज़ हर 5 मिनट में सिर्फ एक अपना एक वैल्यू स्टोर कर रहा है, विच इज़ द टेम्परेचर, कंटेनिंग टेम्परेचर, जो उस टाइम पे टेम्परेचर चल रहा है। तो इसमें अगर मुझे सपोज मैं कहूँ कि मुझे बॉस वेडनेसडेज का चाहिए सिर्फ, तो फिर तो मैं ये कॉमा लगा के ही पागल हो जाऊंगा। सो इसीलिए उस केस के अंदर हम शॉर्टकट्स यूज करते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस शॉर्टकट? वी यूज अ कोलन। नाउ लेट्स सी दिस। सपोज मैंने एक नया वेक्टर बनाया, रूले सिलेक्शन वेक्टर, और रूले सिलेक्शन वेक्टर अगेन मैंने बनाया फॉर 2 to 5. Now my question to you is, what will this give you? What days will this give you? What days will this give you? This Rule vector, Rule selection vector. So maybe Which is what days? Tuesday, Wednesday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Now do remember guys, यहाँ पर एक नोट लिख लो, ठीक है, कि अगेन when you working in Python, तो Python में क्या होगा, यहाँ पर ये 2 इंक्लूडेड है बट ये 5 इंक्लूडेड नहीं है, ये आउटर लिमिट इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है, पाइथन के अंदर। सो this essentially will be 2, 3 and 4 in case of Python, but in case of R this is 2, 3, 4 and 5. This is inclusive in case of R, ठीक है। So let's run this and let's run this. Can you see? हमारे पास चारों दिन का आ गया। So यहाँ पर जो इंडेक्सिंग है, so this is how indexing is done. इंडेक्सिंग जो है वो 1 से लेके आपके जितने भी आपके नंबर्स हैं उस पर्टिकुलर वेक्टर में वहाँ तक जाते हैं। देन लेट्स सी दिस पोकर स्टार्ट। अब ये पोकर स्टार्ट क्या करेगा? अब मैंने क्या किया, अब मैंने कहा कि सपोज मुझे चाहिए इसको इन टर्म्स ऑफ नेम्स, ठीक है, मुझे नंबर्स नहीं चाहिए थे, मुझे पोकर वेक्टर, मुझे उस एलिमेंट का नाम पता था, ठीक है। तो मुझे उस एलिमेंट का अगर नाम पता था तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि बॉस मुझे पोकर वेक्टर में जाओ और मुझे मंडे की जो वैल्यू है, ट्यूसडे की वैल्यू है और वेडनेसडे की वैल्यू है, ये मुझे निकाल के दे दो। तो उसको पता है कि मंडे उसको असाइंड है फर्स्ट नंबर को, सेकंड नंबर को ट्यूसडे असाइंड है, वेडनेसडे थर्ड नंबर को असाइंड है। तो इस तरीके से भी रिट्रीव कर सकते हो अगर आपने वेक्टर के एलिमेंट्स को नाम दे रखा है तो। इसलिए नेमिंग एलिमेंट्स ऑफ अ वेक्टर बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज देन यू कैन रिट्रीव इट ईदर थ्रू द इंडेक्स वैल्यू विच इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यू कैन ऑल्सो रिट्रीव इट थ्रू द नंबर वैल्यू, ठीक है, कि ये नेम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नेम डाला और ये क्रिएट किया, मेरे पास सेम वैल्यूज आ गई ना। यहाँ तक किसी को डाउट्स गाइस? एनी डाउट्स? ओके ग्रेट। नाउ द नेक्स्ट थिंग गाइस इज दैट सपोज आई वांट टू चेक द मीन। अगर किसी भी वेक्टर का आपको मीन डालना, जैसे सम होता है, जैसे बेसिकली आपके उसके अंदर भी होता है, एक्सेल के अंदर भी होता है, ऑल यू नीड टू डू इज मीन एंड टेक एंड डू जो भी आपका वेरिएबल है, जो भी आपका वेक्टर है उसको आप डाल दो। रिमेंबर गाइस, this has to be what kind of vector? This has to be what kind of a vector? If you're using me, it has to be a numeric vector. You cannot use it on a character vector. You cannot use it on a boolean vector. Take a logical vector. So you just do this and you get the mean of this. Now suppose I want to check कि अच्छा बॉस किस दिन मुझे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, कौन से दिन में मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो मुझे वो चाहिए। तो मैंने कहा कि पोकर वेक्टर एंड कौन से दिन मुझे पॉजिटिव प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव मुझे हुआ है। सो आई पुट दिस एंड जैसे ही मैं करूंगा तो इसका अच्छा, नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस गाइस? व्हाट डू यू थिंक? क्या होगा इसका आउटपुट? क्या होगा? विल आई गेट द डेज और व्हाट विल आई गेट? सोच के देखना। बूलियन, एज वैष्णवी से बूलियन मिलेगा आपको। बूलियन की कितनी वैल्यूज मिलेगी? कितने बूलियन मिलेंगे आपको यहाँ पर? डेटा है, so 3 है। हाँ ये 3 है ना, तो इस केस में आपको 3 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास 3 डेटा पॉइंट्स है, या तो तीनों डेटा पॉइंट्स के लिए वो ट्रू या फॉल्स बताएगा। सो यू नीड टू डू दिस एंड व्हाट हैपेंड? ओह सॉरी गाइस, श्रद्धा एक गलती हुई। वो गलती क्या हुई? यहाँ पर हमने पोकर वेक्टर डाला जिसमें पांचों के पांचों डेज थे। यहाँ पर जो हमने पोकर स्टार्ट अगर वो डालते तो पोकर स्टार्ट वाले आते। समझ में आया श्रद्धा? कहाँ प्रॉब्लम? तो हमने ओरिजिनल पोकर वेक्टर डाल दिया था, ठीक है। तो ओरिजिनल पोकर वेक्टर में 5 दिन थे, तो 5 दिन के लिए उसने ट्रू फॉल्स दे दिया, ठीक है। एंड नाउ व्हाट यू वांट इज, सपोज
what you want is you also want to know that how much, not only would you want to know that how much did you win or lose, you also want to see कि आपको कितना मिला, कितना प्रॉफिट हुआ. तो व्हाट यू डू इज, आपने क्या किया, आपने ये सिलेक्शन वेक्टर है, सिलेक्शन वेक्टर इज अ बूलियन वेक्टर, ठीक है. एंड ये आपको बता रहा है कि ये आपको क्या बता रहा है, सिलेक्शन वेक्टर क्या बता रहा है गाइस, क्या बता रहा है सिलेक्शन वेक्टर? नहीं, बूलियन तो है, बता क्या रहा है, किस दिन प्रॉफिट हुआ और किस दिन नहीं हुआ, किस दिन ट्रू है किस दिन नहीं है, ठीक है. तो अब मुझे देखना है कि बॉस किस किस दिन प्रॉफिट हुआ और कितना हुआ. तो मैंने क्या कहा एक बॉस एक बार पोकर वेक्टर में जाओ और ये सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन अलग से जो मैंने ये वेरिएबल बनाया है, ये बेसिकली बता रहा है कि कौन सी वैल्यूज के लिए, कौन से दिनों के लिए ये वेक्टर पॉजिटिव है, ठीक है, इनके एलिमेंट्स पॉजिटिव है. सो द मोमेंट दैट आई रन दिस, व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट विनिंग डेज एंड प्रॉफिट ऑल्सो. उसने इमीडिएटली क्या करा, उसने जहां जहां ट्रू था, मंडे ट्रू था, ट्यूसडे ट्रू था एंड फ्राइडे ट्रू था. तो पहली बात तो उसने चेक किया कि ट्रू कब हो रहा है ये, ओनली फॉर, इट विल ओनली गिव फॉर ट्रू वैल्यूज, इट विल नॉट गिव फॉर फॉल्स वैल्यूज, ठीक है, फॉल्स जहां पर आ रहा है. तो सबसे पहले वो ट्रू चेक करेगा और ट्रू के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो दे देगा. समझ में आया गाइस, ये चीज समझ में आई, नहीं आई? अरे हाँ कि ना, इसी तो मुझे समझ नहीं आया, हाँ बोला कि ना बोला. व्हाट आई एम टेलिंग हियर इज, हमने ये जो सिलेक्शन वेक्टर बनाया था इशिता, ये सिलेक्शन वेक्टर क्या था पहले बताओ. तो कि ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में है, ठीक है, ठीक है. अब मैं चाह रहा हूं कि वो ट्रू वाला जो दिन है उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है, मैं ये देखना चाह रहा हूं, ठीक है. तो ये जो सिलेक्शन वेक्टर है ये बेसिकली बता रहा है मुझे कि किस किस दिन प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, और जिस जिस दिन प्रॉफिट हुआ है उस दिन तो ट्रू लिखा हुआ आएगा, ठीक है. अब ये क्या कर रहा है, अब पोकर वेक्टर के अंदर मैं देखना चाह रहा हूं और पास कर रहा हूं सिलेक्शन वेक्टर. तो ये पोकर वेक्टर के अंदर देख रहा है कि ये सिलेक्शन वेक्टर ट्रू कब कब है. तो सिलेक्शन वेक्टर के अंदर वो देख रहा है कि अच्छा ट्रू मंडे को है, ट्रू वेडनेसडे को है, ट्रू फ्राइडे को है. तो जहां जहां ये ट्रू है उसके अकॉर्डिंग जो पोकर वेक्टर के अंदर वैल्यूज है बस वो प्रोवाइड कर रहा है. तो पोकर वेक्टर के अंदर जो जो वैल्यूज थी हमारी मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे की और फ्राइडे की, मंडे फ्राइडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे की, बस वो वैल्यूज उसने आके रिट्रीव कर दी. तो एक तरीके से नेस्ट बनाया है आपने, थिंक ऑफ इट एज नेस्टिंग, ठीक है. तो ये इस तरीके से आप नेस्टिंग कर रहे हो आप. एंड सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर रूले एज वेल. सिंपल रूले के लिए कर लो एंड रूले सेलेक्ट विनिंग डेज करोगे तो आपके पास उसकी वैल्यूज आ जाएंगी. ये आ गया, समझ में आया गाइस? यस, नो, पक्का? तो लेट अस जस्ट क्विकली सी कि हमने क्या क्या किया. लेट्स क्विकली सी कि आपने वी स्टार्टेड आवर क्लास एंड मैंने सबसे पहले आपको कोर्स के बारे में बताया. देन हम कोर्स में क्या क्या करने वाले हैं, आर प्रोग्रामिंग एंड एक्सेल करेंगे, ठीक है. एंड ईदर यू कैन यूज आर क्लाउड और यू कैन यूज अ डेस्कटॉप और लैपटॉप. कोर्स करिकुलम आई हैव टोल्ड यू, यूनिट 1 मेजरली गरिमा एंड बाकी सारे यूनिट्स में थ्योरी वाला पार्ट गरिमा, प्रैक्टिकल वाला पार्ट मैं कर रहा हूँ. देन ये हमने आर स्टूडियो देखना, जिन्होंने डाउनलोड नहीं करा गाइस, मेक श्योर यू सी दी आर स्टूडियो कि कैसे कंसोल काम करता है. एंड ये हमारा राइटिंग स्क्रिप्ट था, ये हमारा एनवायरनमेंट था जहाँ वेरिएबल्स क्रिएट हो रहे थे. यहाँ पर हमारे प्लॉट्स, अभी हमने प्लॉट्स के बारे में बात करनी, बट हम प्लॉट्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पर कि प्लॉट्स, यहाँ पर हम प्लॉट्स के बारे में बात करेंगे. एंड ये हमारा कंसोल है जहाँ पर हम आउटपुट कोड्स हमें सारे के सारे मिल जाते हैं जो भी हम आउटपुट रन करते हैं. दैट्स इट गाइस. सो